Divya Tusniyal show, where we are all about living life with a skip in our steps and beat in our hearts. Remember that epic moment in ABCD2 when Varun Dhawan set the screen on fire? Well, guess what? The real life inspiration behind that character is right here with us. That's right, folks. We are talking about the man who made Jennifer Lopez jump on her feet with a perfect score on World of Dance. From busting moves on the street to conquering international stages, this guy's story is like a Bollywood movie coming to life. So put on your dancing shoes and get ready to meet India's dance ambassador, fitness guru, and rhythm maestro. Please welcome the one and only Mr. Suresh Mukund, the founder and director of dance crew Kings United India. Hey Suresh, how are you doing? So nice to have you here. Thank you. Same here. So let's turn on the volume Yes. and let the good times roll in. Yes. So I want to understand how you start your career, what made you get into dancing? Dancing, I started when I was 12 years old. I 12? remember, 12. I was in Okay. 8th standard, and for the first ever time, I saw Hrithik Roshan on television. Ik Pal Ka Jeena, I still remember the song. And my elder brother used to copy him, and he used to perform in the school. And he was very good looking, handsome, like my elder brother, and girls used to go crazy behind him and his dance. So I was always jealous of him that ये इतना अच्छा dance Hrithik कैसे कर रहा Roshan है? or No, the of elder my brother? elder brother. Okay. And then I saw Hrithik Roshan because he used to follow Hrithik Roshan. Yeah. And उसकी न्यू मूवी आई थी जस्ट पहली Okay. बार कहो ना प्यार है तो Okay. कोई जानता नहीं Oh था my God, कहो ना कहो प्यार ना है। प्यार है यस यस तो मैंने भी देखा कि ये क्या है फिर एक पल का जीना सॉन्ग चल रहा था एंड हाँ। दैट टाइम बिकॉज इंटरनेट नहीं था कुछ था नहीं तो हाँ। हम सीखने के लिए हमें टीवी पे उस वक्त के लिए वेट करना पड़ता था जब वो सॉन्ग आए हाँ, ETC और वो करके पता नहीं चैनल आता था होता कि था, कब पता आएगा। नहीं होता था रैंडमली आता था। रैंडमली आता था तो मैं उस वक्त ऐसे ही बैठा रहता था टीवी पे तो जैसे वो वीडियो आया एग्जैक्टली उसी टाइम पर जाके टीवी के बाजू में खड़े होके वो स्टेप्स को सारा मैच करना एंड देन लर्न करना सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड आई रिमेम्बर लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं स्कूल का कैंप जा रहा था जैसे कैंप में मैंने परफॉर्म किया एंड Which वहां was a से surprise element for यस everyone. यस यस इनफैक्ट मुझे वो भी याद है स्कूल में लाइक हिडन टैलेंट के हिसाब से मुझे लोगों ने वैसा पहचाना भी था एंड कुछ प्राइज भी मिला था हिडन टैलेंट का एंड दैट्स हाउ इट ऑल चेंज्ड माय लाइफ So, but then when you were dancing and not focusing on your studies, so how was your reaction of your parents like? ऐसे हम लोग को तो बचपन में बुलाया था पिटाई विटाई पड़ेगा जा डांस करा तो देखो जब तक स्कूल में थे तब तक तो पेरेंट्स को लगा हाँ। भी नहीं था कि इतना सीरियस नोट पे कर रहा है दे हाँ। वर लाइक ओके हाँ चलो कॉम्पिटिशन्स कर रहा है स्कूल के अंदर ही एंड दे वर हाँ। हैप्पी बट पोस्ट दैट व्हेन आई वांटेड टू टेक इट एज अ करियर हाँ वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए थे बिकॉज माय फादर लाइक ही हिमसेल्फ इज इनटू कंस्ट्रक्शन तो उनका अच्छा खासा बिजनेस हो चुका था जब तक मैं ग्रेजुएट कर चुका था तो ही वांटेड मी टू जॉइन हिज बिजनेस इनफैक्ट मैं उनके साथ कुछ एक साल काम भी कर चुका हूँ एंड फाइनली देन आई आस्क्ड हिम फॉर अ परमिशन लाइक कि मुझे 2-3 साल का एटलीस्ट चांस दो लेट मी प्रूव Prove माई myself, सेल्फ yeah. so that's how we got convinced my father and my कि like ठीक my है mother 3 years में धक्का खा के फिर आ फिर जाएगा आ जाएगा हाँ तो आई रिमेम्बर मेरे को जाना था मूवी की 2005 में ओके तो तब से लेके 2009 में गया हूँ मैं 4 साल मैंने कोशिशें So की है you were कि in college at that time, या like, आई वाज इन कॉलेज and 4 years of continuously trying for ट्राइंग Boogie या Woogie and कि not giving ऑडिशन up. कहाँ होते हैं कैसे होते हैं तब जाके 2009 में चांस 9 मिला. में चांस मिला था So you had your own dance troupe by that time. that time we were known as fictitious group Okay. and me and Vernon हम दो पार्टनर्स थे हाँ. हमने ये शुरू किया एंड 2009 में वी गॉट वेरी पॉपुलर बिकॉज पहली बार इंडिया में फ्लिप्स को इंट्रोड्यूस किया था हमने कोई Okay. फ्लिप्स एंड फॉर्मेशंस नहीं करता था Okay. तो उस जमाने में इवन इन बोगी वी शो में भी डांसिंग जो होती थी वो सब लोग एक साथ एक ही जगह पे खड़े एंड कोरियोग्राफी होती थी सिर्फ डांस मूवमेंट्स होते थे कोई शिफ्टिंग नहीं कोई फॉर्मेशन नहीं कोई फ्लिप्स नहीं कोई ऐसे डिफरेंट आइडिया नहीं था किसी का तो वो हमने जब इंट्रोड्यूस किया दैट्स हाउ वी गॉट पॉपुलर एंड देन फिर वो जो एरा शुरू हुआ तो तब से आज सभी लोग कर रहे हैं So your story inspired Remo D'Souza also to make a movie based on Suresh Mukund's real life story, which casts stars like Varun Dhawan and Shraddha Kapoor as lead actors. So do you feel honored and proud, or was it too overwhelming to even fathom? Of course, it's a mixed feeling because the time this happened, I was just 24-25 years old. Like मेरे लिए ही वो इतनी बड़ी बात थी कि मैं 24 साल का हूँ और मुझ पर फिल्म बन रही है लाइक मुझे और मेरी पूरी टीम How पर did फिल्म this happen actually? Why did he pick up you? सो हमने इंडियाज गॉट टैलेंट कुछ 2011 में जीता था एंड जीतने के बाद आई रिमेम्बर लाइक रेमो सर ही कॉल्ड अस फॉर सम शो तो मैंने उनसे जाके पहली बार मिला
एंड पहली बार मिलने के बाद बिकॉज दैट टाइम डांस चल रहा था एंड इट वाज वेरी पॉपुलर एंड रेमो सर वाज ऑन अनदर लेवल. Yeah. उनसे मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी. तो उनके असिस्टेंट का मुझे फ़ोन आया और मैं उनसे मिला. मिलने के बाद मैंने उनको पूरा मेरे इंडियाज़ गॉट टैलेंट का बताया कि हम क्या-क्या करते हैं. देन ही गेव अस सम वर्क एंड हमने उनके साथ काम करना शुरू किया. कुछ 1-2 साल काम किया एंड 1-2 साल बाद जब हमने प्लान किया हमें इंटरनेशनल जाना है, तो मुझे ये भी याद है मैंने उनके पास गया भी था, उनको बताया था कि मैं ऐसा वर्ल्ड हिप हॉप चैंपियनशिप करके होता है बाहर, जो मुझे कम्पीट करना है. एंड दैट टाइम इंडिया में किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई कंपटीशन, नॉट इवन लाइक बड़े-बड़े कोरियोग्राफर्स को भी पता नहीं था. तो हम लोग पहली बार 2012 में गए एंड वहाँ पे 60 कंट्रीज होती है जिसमें ऑलमोस्ट हर कंट्री के बेस्ट 3-3 क्रूज आते हैं. तो 200 क्रूज होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है, वर्ल्ड के बेस्ट क्रूज. तो उसमें पहली बार कोई न्यू कंट्री फर्स्ट एंट्री में आके सीधा फाइनल्स तक पहुंची थी और वो हमारा इंडिया था. तो वो जो चीज़ थी वो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग थी कि पहली बार में पहुंच गए. एंड देन जब लाइक व्हेन आई मेट रेमो सर, उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या है कहानी. तो मैंने उनको बताया था कि एक टीम थी, एक फिलिपिन ऑल स्टार्स करके, जो फिलीपीन से थी, जो 3 साल इस कंपटीशन में वर्ल्ड चैंपियंस रह चुकी है. एंड मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्हीं की रूटीन्स बनाया करता था. एंड देन 2012 में मेरा कंपटीशन उन्हीं के सामने हुआ, जिनको देखकर मैंने शुरू किया. एंड हम लोग आमने सामने थे एंड हमने उनको हराया. मतलब were you nervous or you were confident when मैं you बहुत went? छोटा था. मेरा लाइक इट वाज, मेरे अंदर की फायर जो थी ना, लाइक टुडे तो आई एम वेरी मैच्योर्ड एंड मुझे अलग चीज़ें अलग तरीके से समझ आती है, बट उस टाइम पे जो फायर थी वो बहुत ही कुछ अलग लेवल पे थी. तो मैं और मेरा पार्टनर वर्नन, हम दोनों ने मिलके किया था ये. तो हम लोग को बस ये था कि बस जाना है एंड जीतना है या कुछ करना है, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड फिर उन्होंने कहानी सुनी एंड उसके बाद ये फिल्म का आइडिया आया. Why did you part ways with fictitious group and Varman? Since you were the best of friends and you're still in touch with the crew and Varman. हमने कुछ 5 साल काम किए एंड आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विद द, लाइक पूरा वो जो जर्नी था 5 साल, मैंने बहुत कुछ सीखा. ABCD 2 फिल्म भी उसी पूरे टीम पर बनी थी, मी, माय पार्टनर गोइंग इंटरनेशनली एंड डूइंग दीज थिंग्स. बट आई फील कि एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया था कि हमारे क्रिएटिव साइड्स जो इतने क्लैश होने लग गए थे कि दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था चीज़ें. लाइक जो मुझे पसंद आ रहा है वो उसे नहीं आ रहा है, जो उसे पसंद आ रहा है वो मुझे नहीं आ रहा है. तो काफ़ी वो अनबन एंड हम बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे. लाइक मैं जब 21 था तब फिक्टिशियस ग्रुप शुरू हुआ था एंड अंटिल लाइक 25 के आसपास तक वो पूरा ब्रेक हो गया. तो वो जो 4 साल थे मैं खुद बहुत छोटा था, तो वी आर ऑल ऑन फायर. तो गुस्सा बहुत आता है, उसको गुस्सा आता था, मुझे गुस्सा आता था. तो ये जो है वो म्यूचुअली वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन थी नहीं. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड देन हमने अपने अपने रास्ते बनाए. उसने अपनी टीम शुरू की, मैंने अपनी टीम शुरू की. एंड So you still have some old members in your team from that group? I still have, yeah. So वो भी टीम भी बढ़ गया 2 जन. Yeah, वो भी बढ़ गया था. Yes. So, like मेरे साथ अभी भी कुछ लोग हैं जो 15 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं. Like when they were 12-13 years old तभी जुड़े थे एंड अब वो. But you and Varman still continue to be best friends. Not best friends, but we are good friends. Yeah, we know each other very well and बातचीत होती रहती है. हाँ, बीच में थोड़ा एकदम वॉर जोन था, लाइक जब ये जैसे होता है यंग एज में. हाँ 14 से लेके 17 तक 3 years it was a war zone full on. Like people used to think कि कौन अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, तो वो चलता रहता था. मतलब the competition was totally against him. Because हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर रहे थे. जब अलग हो गए तो ऐसा था ना कि ये बेटर है कि ये बेटर है, ये बेटर है कि ये बेटर है. तो वो जो वॉर चल रही थी वो पूरे टाइम पर वो 3-4 साल चले थे. बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा वो पीरियड. हाँ, इनिशियल तो बहुत स्ट्रेसफुल था बिकॉज जब जो काम मिल के काम कर रहे थे अब अकेले करना पड़ा. यस, क्योंकि मुझे पूरा नया ब्रांड बिल्ड करना था, पूरा वापस से शुरुआत करना. हमने 5-6 साल मेहनत की, फिल्म भी बन गई. एंड फिर मुझे ये भी याद है कि फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते पहले क्रू टूटा है फिक्टिशियस ग्रुप. लाइक ऐसा था कि सोचो कि पूरा हमारे लाइफ स्टोरी पे फिल्म बन रहा है, 2 हफ्ते बाद रिलीज होने वाला है. एंड सीन ऐसा था कि हम सारे जो क्रू वाले ना सब लड़ाई झगड़ा करके मारा मारी करके पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, सारे के सारे. रेमो डिसूजा इसके ऊपर फिल्म नहीं बनाएगा. हाँ, तो फिल्म बन चुकी थी, उसके बाद की स्टोरी है. हाँ. So सुरेश, we saw you last as judge in Dance Plus season 5. मतलब आपने अभी तक खाली एक ही शो को क्यों जज किया, उसके बाद कभी जज नहीं किया? ये सवाल मुझे लगता है कि आपको पूछना चाहिए हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री से, बिकॉज मेरे खुद के लिए ये बहुत शॉकिंग है कि मैं जब वर्ल्ड ऑफ डांस जीत के आया था, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो एंड रियलिटी शो मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियलिटी शो जीत के आ गया. सो इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इंडिया में पीपल विल स्टार्ट कंसिडरिंग मी इन दैट पोजीशन. बट आई नेवर गॉट एनी ऑफर. आई जस्ट गॉट वन ऑफर
फॉर दिस डांस प्लस आई डिड इट, दैट्स इट. बट उसके बाद, उसके पहले, उसके आगे पीछे मुझे आज तक कभी ना कॉल्स आए, ना इंक्वायरीज आई है, ना कुछ आई है. तो it is quite shocking for me also कि people like even in the television industry they are still not considering You me as a judge or as seeing a you as a judge. judge. Yes, yes, yes. Welcome back to Divya Tusyal show, and on the couch is none other than the star choreographer Suresh Mukund. So Suresh, World Hip Hop Dance Championship in Las Vegas, winning the first medal for India in 2015 was a historic moment for Indian dance on the global stage. How did you feel about that achievement? Firstly, मेरा देश को रिप्रेजेंट करना, वो फीलिंग मेरा डेवलप हुआ जब पहली बार मैं गया. उसके पहले तो पता भी नहीं था कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता क्या है. एंड वो फीलिंग आने के बाद फर्स्ट टाइम 2012 में जब ये आई फीलिंग, देन उसके बाद जो 2015 में पहली बार मेडल लाए हम लोग, सो उस टाइम पे जेन्युइनली व्हेन आई वेंट देयर इट वाज लाइक मुझे इंडिया के लिए करना है, मुझे इंडिया के लिए करना है. मतलब इंडिया की चीज़ों को बदलना है, वो नाम बनाओ ज़िंदगी में कि अपने देश के लिए कुछ चेंज लाते हैं. एंड एज अ डांसर वो आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम आवर कंट्री टू टेक दिस फीलिंग. एंड व्हाइल डूइंग दैट आल्सो आई वाज फीलिंग कि मैं ये जो कर रहा हूँ मैं और मेरी टीम जो कर रही है, इससे कितने डांसर्स का Motivate हो गए. थॉट चेंज होगा, मोटिवेट हो गए. So when you came back to India with the trophy, so what was the welcome or response which you got here? The best thing, like after winning World of Dance, I feel कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, राइट फ्रॉम ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन, लाइक A-listers, everybody tweeted about my team and my work. एंड मेरे लिए जब ऋतिक रोशन का जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्वीट देखा था, लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2019, मैंने पहली बार 2000 में ऋतिक रोशन को देख के डांस शुरू किया है. एंड 19 साल बाद वही इंसान मेरे लिए ट्वीट कर रहा है एंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी फॉर माय अचीवमेंट. सो देखो अभी भी कह रहा था मुझे गूज़बम्स आ रहे, लाइक so that feeling I cannot express it. It's an amazing feeling. So World of Dance Competition 2019 with judges like Jennifer Lopez participating in such a big show and global recognition with a whooping amount of $1 million prize as winners. At that time, how did you feel that you had achieved it all? Because आप बताए रहे थोड़ा देर पहले कि मूवी में 25,000 रुपया आपने कमाया था, है ना? Yes, yes, yes. So yes. the And पहली journey बार from there मुझे to there. वो आपने जैसे बोला, मुझे एक फ्लैश और एक मोमेंट याद आया कि मैं अपने टीम के साथ खड़ा था. किसी को पता नहीं था कि कितना इसका प्राइज मनी है, और किसी ने कभी 1 मिलियन कैलकुलेट भी नहीं किया था कि होता कितना है, क्योंकि हम विनिंग तो बहुत बात की बात है ना. हम पहले कंपटीशन में गए बस, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम जीतेंगे डे 1 पर. तो हम जब गए तो ऐसे ही जब पता किया कि इसका $1 मिलियन प्राइज है, तो मैंने ऐसे कैलसी में कैलकुलेट किया, तो उसका इंडियन करेंसी में 7.5 CR आ रहा था. तो हम लोग ऐसे बोलते 7.5 करोड़. तो इट वाज लाइक क्रेजी, लाइक इतना पैसा कभी जिंदगी में देखा नहीं है और ये हम जीत सकते हैं. तो इट वाज अ क्रेजी फीलिंग. मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ के. लाइक जहाँ पे आप कह रहे हो जैसे हम 20-25 हजार में खुश होते थे, वहाँ पे हम 7.5 करोड़ तक पहुंच गए. The level of happiness changes as we grow old. It is like feeling on top of the world. And वो और जीत भी वो लोग रहे जिसमें से जो 15-20 लोग गए, उसमें से आधे से 11 लोग को तो इंग्लिश ही नहीं आती है. तो बोल क्या रहे लोग, बाहर बात क्या कर रहे वो भी नहीं पता. बट स्टिल वो लैंग्वेज ना आते हुए भी किसी देश में जाना और कुछ हासिल करना, so It's a very big it's a thing. big thing. Yeah. So Suresh, do you think that Indian dance industry gives enough credit to behind the scenes choreographers, or they are just like the unsung heroes? Like recently, I remember कि बॉस्को सर जिन्होंने ये तौबा तौबा जो मतलब ही इज़ अ वेरी बिग कोरियोग्राफर, तो उन्होंने भी बीच में ट्वीट भी किया था. उनका एक आर्टिकल भी आया था कि कोरियोग्राफर्स को उस लेवल पे क्रेडिट मिलता नहीं है, तो उनको भी फाइट करना पड़ा है कि क्रेडिट मिले. सो दिस हैज़ बीन अ थिंग कि राइट वे में क्रेडिट मिलता नहीं है. बट आई फील कि विद टाइम स्लोली वो आना शुरू हुआ है. एंड आई होप कि आने वाले वक्त में राइट वे में वो कोरियोग्राफर्स को प्रॉपर क्रेडिट मिलना चालू होगा, उतनी पॉपुलैरिटी मिलना चालू होगी. So the journey from competing on local shows like Boogie Woogie to being an Emmy-nominated choreographer is commendable. What was the one defining moment when you realized that you had made it in the global dance scene? वन सीन दैट इज लाइक वो जो मेरे दिल दिमाग में छप गया है हमेशा के लिए, दैट वाज जब ये वर्ल्ड ऑफ डांस का फाइनल परफॉर्मेंस फिनिश हुआ था एंड जब स्कोरिंग आ रहा था, तो पहली बार ऐसे पूरी हिस्ट्री में हुआ था कि कोई कंटेस्टेंट्स या कोई ग्रुप या कोई टैलेंट इतने बड़े शो में
हर जज उनको 100 आउट ऑफ 100 दे रहा है. सो दैट वाज द मोमेंट जब वो 100 जब आया था, तो जो मेरे गूज़बम्स आए थे. एंड मुझे पता था कि इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड लेवल का ये काम कर लिया. एंड 100 आउट ऑफ 100 जो कभी हुआ ही नहीं है. एंड हम बिलोंग करते हैं मुंबई के छोटे से वसई नालासोपारा के शहर से. एंड ये हो रहा है यूएस में, लॉस एंजलिस में. तो वो जो मोमेंट था, तो वो जो मुझे आज भी याद है कि मैं इतना क्रेजी हो गया, तो मैं जाके रास्ते पे जमीन पे लेटकर ऊपर देखकर एकदम खो गया था अपने अंदर. Do you think Vicky Kaushal's viral hook step in Tauba Tauba was overhyped? सो मेरा भी पहला रिएक्शन जब मैं देखा था, आई वाज शॉक्ड. व्हाट इज ही डूइंग, लाइक इतना अच्छा कैसे कर रहा है, बिकॉज आई हैव नेवर सीन विकी कौशल डांसिंग. Yeah. एंड वो देखकर मैं हिल गया. तो इट इज ऑफ कोर्स नॉट ओवरहाइप्ड. एंड उस बंदे ने ऐसा कुछ किया है जिसने पूरा देश हिला दिया. एंड वो स्टाइल से, जिस स्टाइल से किया था, एंड दैट्स क्रेजी. लाइक किसी ने सोचा नहीं था विकी कौशल इतना अच्छा डांस करता है. So I don't think it was overhyped. It was because he did it in a way which like जिसने हिला दिया पूरा. तो I just texted him like मैंने सोचा मैं था you can dance so good, like you're crazy. He replied also, he said thanks and everything. तो मुझे खुद को honestly I felt कि he's doing something different, unique. So I got really happy with that. All right, Suresh, we have covered some serious ground, but now it's time to lighten things up and have a bit of fun. Welcome to the Get Quirky with Divya segment. But I'm very bad with rapid fire, but I'll still try because Okay, yeah, we rapid will fire take more बोलते time. ऐसा होता क्या बोलूँ मैं वैसा हो जाता. But still I'll try definitely. So, Ganpati dance or classical dance, what do you enjoy more? गणपति डांस. So, popularity or global recognition? देखो ग्लोबल रिकॉग्निशन मैंने काफी ले लिए. अब मुझे जरूरत है पॉपुलैरिटी की. So I'll go with popularity. Popularity की popularity with girls? दोनों भी. Okay. On stage performance or behind the scene choreography? On stage performance. Oh, that's the hero answer. Yeah. What impresses ladies more, shape or step? I mean the abs. I think it's a combination of both. Okay, very well answered. Prabhu Deva or Michael Jackson? Michael Jackson. Why? Because I have followed him. Of course, Prabhu sir, he's also the god of dance. But my memory has, like, Michael Jackson was also one of the main, जिनको देखकर मैंने काफी कुछ चीजें सीखी है. वो इंटरनेशनल पहुंचना है, वो जो थॉट वॉट है, वो उनको देखकर भी आया है. Have you ever forgotten your choreography on stage? Yes. And how did you deal with it then? वो तो रियलिटी शो में हुआ, इंडियाज गॉट टैलेंट में हुआ है. वो किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन मैं लिटरली पहले 5 सेकंड्स में ब्लैंक हुआ हूँ. एंड मैं भूल गया हूँ. उसके नेक्स्ट 5 सेकंड्स में मैं वापस से पिकअप किया एंड कंटिन्यू किया. Okay. तो ये हो चुका मेरे साथ. Yes. Do you collaborate with 50 Cent? How was it? It was amazing experience because 50 Cent को चाइल्डहुड में उनके गाने सुनकर मैं उनकी तरह बनकर हिप हॉप करने की कोशिश करता था. Right from there to work with 50 Cent, it's a very big thing. And कोई भी इंडिया का कोरियोग्राफर आज तक 50 Cent के साथ पर्सनल लेवल पे काम नहीं कर पाया. So I am the only one who has You've worked done with lot of him. things which only you have done. So yeah, that is something Yes. amazing. Best experience Yes, रहा है it मेरा. is Yeah. amazing. So, Tamanna or Noora Fateh, who's a better dancer? Dancing wise, of course, Nora. I Okay. feel Nora is amazing dancer. She is outstanding. Have you ever faced politics or favoritism in the dance industry? Not really, but I have got मैंने hatred काफी face किया है डांस इंडस्ट्री से एक पर्टिकुलर वो तो टाइम उस समय पर. जब हाँ separation हुआ था आप लोग का इनिशियल group टाइम का. पर. हाँ, बट ऐसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना कोई खराब नहीं रहा है ऐसे पॉलिटिक्स एंड इसमें. So, what's your honest opinion on reality dance shows, scripted or genuine? It is a mix of both. It's It is a mix of both, yeah. Because I will not say the show is scripted. I'll say कि they designed it in a way जो सही चल पाए लोगों के लिए एंड ऑडियंस के लिए. तो उस पर्सपेक्टिव से उसको डिजाइन किया जाता है जिसको लोग स्क्रिप्टेड मानते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज जेन्युइन ऑल्सो. So, do you think nepotism exists even in the dance fraternity or the industry? My experience I have not seen, but it might be. I don't Okay. know. But in my experience, because I have not closely very much worked in the Bollywood industry, my work zone is little different. But as per my experience, I have never Faced seen, that kind of faced that scene. kind of situation. But definitely it might be there. I don't know. So, what's the most difficult part of working with celebrities or big names? It is the pressure. I feel that is the difficult part because हम जो अंदर से खुद छोटे होते हैं इतने बड़े सुपरस्टार के साथ जब काम करते हैं तो वी हैव लॉट ऑफ प्रेशर टू गेट दैट satisfaction on our job. So that pressure is little difficult part that I feel. So, all right, Suresh, ready for the grand finale? Yes.
I've got a fun challenge lined up for you. You will show off your skills and we Yes, will ask our definitely. viewers to join in. And now it's turn for the audience. Try this challenge yourself and don't forget to tag Suresh Mukund and the Divya Tusnial Show on your reels using the hashtag Divya Tusnial Show, hashtag challenge accepted. Thanks Suresh. We've got something for you, a cool poster from the show. Mind adding your signature to make it extra special? Please. Thank you so much for this. Wow. सिखाना पड़ेगा डांस. Thank you so much, Suresh, for coming to the Divya Tusnial show. It was really a pleasure to host you. And you have so many accolades and achievements, which I'm sure you really need to brag about. And I myself feel so proud about you. There were so many things which you did for the first time for the nation as well. That means So- thank you. I had an amazing time. Thank you for having me. That's all for this episode, folks. Keep challenging yourselves, stay motivated, and tune in next time for more inspiring stories and expert guidance right here on Divya Tusnial Show. Until then, take care and remember, our motto, stay healthy, be wealthy. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.